Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. Guys, I'm here and providing you series of previous year questions, and in this video we are going to discuss a question from CSIR NET Physical Science December 2017 Thermodynamics and Statistical Physics, that is also of part C. We have already discussed two questions previously in previous videos that was so simple beyond our imagination. मतलब हमें ये विश्वास करना होगा कि पार्ट सी में इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं. सो गाइस, वी कैन इजीली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड इन दिस वीडियो आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन जिसको हम डायरेक्ट एक फार्मूला मेमोराइज करके सॉल्व कर सकते हैं. So here I'm also an educator on Unacademy Plus. So if you want to subscribe for Unacademy courses, then you can use my referral code Surbhi Upadhyay for 10% discount. Okay. So referral code की spelling है SURBHIUPADHYAY. So you can apply this code for 10% discount if you want to subscribe for Unacademy Plus. So guys, in this question it was given that two non-degenerate energy levels with energy 0 and E. देखो सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला था, उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, यहाँ पे एवरेज एनर्जी पूछी गई है. तो दोनों के फार्मूलाज होते हैं, सिर्फ फार्मूलाज याद कर रखने हैं और इजीली आपका आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो जीरो एंड ई ऑक्यूपाइड बाय नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एट अ टेम्परेचर टी. Particles are again non-interacting, okay, and non-degenerate. If degeneracy is given to you, then you are going to multiply degeneracy with that particular एनर्जी लेवल और पर्टिकुलर फार्मूला. जहाँ भी फार्मूला आ रहा है आपको वहाँ पे जब भी आप सिग्मा कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय डीजनरेसी ऑल्सो. तो यहाँ पे आपको नॉन डीजनरेट स्टेट दी गई है, तो इसलिए हमने डीजनरेसी को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है. बट यदि आपको डीजनरेसी गिवन हो किसी पर्टिकुलर लेवल के करस्पॉन्डिंग, देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट डीजनरेसी देयर. ओके. So using classical statistics, the average internal energy of the system is, because particles are non-interacting, so those will be classical particles. So we are going to use the classical statistics, the average internal energy of the system. So अभी हम जब एवरेज एनर्जी निकालते हैं, सो एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए यदि हम निकाल रहे हैं, सो दैट इज गिवन बाय सिग्मा फॉर ऑल द energy levels EI, that is the particular energy of ith level, and into e to the power minus beta EI upon sigma I e to the power minus beta I. This is again Z partition function. So you are just going to divide it by partition function. तो वहाँ पे जो हमने यूज़ किया था probability में, हम यहाँ पे एनर्जी से मल्टीप्लाई नहीं करते और इसका समेशन नहीं करते, सिर्फ ये और ये रहता है. यहाँ पे एनर्जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन होगा सारी एनर्जी लेवल्स का. सो प्लीज़ बी स्पेसिफिक विथ योर फार्मूलाज. इनको फार्मूला नोटबुक में नोट करते जाइए. आप सिर्फ ये फार्मूलाज भी याद कर लेते हैं अच्छे से तो भी इजीली आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में. तो ये वीडियोस लाइन से सब देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन इजीली क्रैक योर एग्जाम बाय these previous year questions analysis if you have very good command on your concepts. So E1 is 0, two levels are given to you, one is having energy 0 and second is having energy E. So total average energy per particle, for one particle we are going to find. So it is again बस हमें क्या करना है, फार्मूला में वैल्यूज पुट करते जाने. So E1 e to the power minus beta E1 plus E2 e to the power minus beta E2 upon e to the power minus beta E1 plus e to the power minus beta E2. तो यहाँ पे देखिए E1 0 है, तो ये टर्म E1 से 0 से मल्टीप्लाई होने पे पूरा 0 हो जाएगा, प्लस E इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा ई. ओके. एंड यहाँ पे हो जाएगा e to the power 0 plus e to the power minus beta e. So we are going to get this relation e to the power minus beta e upon 1 plus e to the power minus beta e. This is the energy for one particle. So for n particles it is going to be n e to the power minus beta e upon 1 plus e to the power minus beta e. So this is the correct answer. But now we have to match the our answer with options. So देर इज़ नो ऑप्शन मैचिंग विद दिस आंसर. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, हमें कोशिश करनी है. हमने सही स्टेप्स फॉलो किए तो हमारा आंसर करेक्ट है. बस हमें थोड़ा सा क्या करना है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई से डिनोमिनेटर और यहाँ पे न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ई टू द पावर बीटा ई. सो अब आपका ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं.
एक फार्मूला आपको याद रखना है और स्टेटिस्टिक्स के लगभग सारे क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, बहुत बार इस पे एवरेज एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So don't forget to memorize this formula, and also don't forget to subscribe the channel, like the video and share with your friends. Thank you so much.